Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to start English textbook 1 for 9th class, in which the very first chapter is the savior of mankind. The complete chapter is about the people of Arabs, their behavior and their attitudes, and about the life of our holy prophet, peace be upon him. Okay dear students, in my lectures I will discuss the question answers, MCQs and translation paragraphs according to board point of view. Okay, so dear students, let's start with the textbook. Okay, so dear students, let's start with the paragraph number 1. Arabia is the land. अरब एक सरजमीन है of unparalleled charm, बेमिसाल हुस्न and beauty और खूबसूरती की. With its trackless deserts, trackless means बेराह, deserts सहरा, of sand dunes रेत के टीलों वाले, in the dazzling rays चुंधिया देने वाली शुआओं के साथ, dazzling चुंधिया देने वाली शुआएं, of a tropical sun इंतहाई गर्म सूरज की. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts and sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. अरब की सरजमीन इंतहाई गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शुआओं में अपने बेराह रेत के टीलों की वजह से दिलकश और हुस्न में बेमिसाल है. Its starry sky, starry means तारों बड़ा आसमान, has excited तहरीक बख्शता है, जोश देता है, the imaginations तख्लील को, of poets शायरों की, and travelers और मुसाफिरों की. Its starry sky has excited the imaginations of the poets and travelers. इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख्लील को तहरीक दी है. It was in this land, यही वो सरजमीन थी, that the रसूल was born, कि जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, in the city of मक्का, मक्का के शहर में, which is जो कि है about 50 miles, तकरीबन 50 मील के फासले पर, from the Red Sea, बहीरा अहमर से. It was in this city that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. यही वो इलाका है जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा हुए, जो कि बहीरा अहमर से करीबन 50 मील दूर है. Second paragraph. The Arabs possessed means मालिक है, a remarkable memory गैर मामूली हाफजे के, memory हाफजे के, and और were an eloquent people और हुश बयान लोग थे. अहले अरब गैर मामूली हाफजे के मालिक थे और हुश बयान लोग थे. Their eloquence उनकी फसाहत, उनकी हुश बयानी, and memory और उनका हाफजा found expression जाहिर होते हैं in their poetry उनकी शायरी से. Their eloquence and memory found expression in their poetry, उनकी फसाहत और उनके हाफजे का इजहार उनकी शायरी से मिलता है. Every year, हर साल, a fair was held, एक मेला मुनक्किद होता था, for poetical competition, शायरी के मुकाबलों के लिए, at उकाज, उकाज के मुकाम पर. Every year, a fair was held for poetical competitions at उकाज. हर साल उकाज के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्किद किया जाता था. It is narrated, ये कहा जाता है, that हमाद said to खलीफ वलीद बिन यजीद, के हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, I can recite to you, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, for each letter of alphabet, हरूफ तहज्जी का हर एक हर्फ, 100 long poems, 100 तवील नज़मों का, without taking into account short pieces, छोटे हरूफ को गिनती में लाए बगैर, and all of that और वो तमाम, was composed लिखी गई थी, exclusively खास तौर पर, by poets शायरों ने, before the promulgation of Islam
बिफोर द प्रोमलगेशन, इशात से पहले, ऑफ इस्लाम, इस्लाम की। It is narrated that Hamad said to Khalif Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको छोटे किताब को गिनती में लाए बगैर हरूफ़े तहज्जी के हर हर्फ की 100 तवील नज़में सुना सकता हूँ, और वो तमाम ख़ास तौर पर इशात इस्लाम से कबल पहले के शोरा की लिखी हुई हैं। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई मामूली मोजज़ा नहीं है, वंडर मोजज़ा नहीं है, दैट के अल्लाह अलमाइटी चूज़, अल्लाह ताला ने चुना, द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान को, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने हतमी निज़ाम तबलीग के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन, और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऑफ हिज। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई मामूली मोजज़ा नहीं है, दैट अल्लाह अलमाइटी कि अल्लाह ताला ने चूज़ द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान को चुना, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने हतमी निज़ाम तबलीग के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन, और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऑफ हिज वर्ड्स, अपने अल्फाज के। It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His words. ये कोई मामूली मोजज़ा नहीं है कि अल्लाह कादिर मुतलिक ने अपने हतमी निज़ाम फ़ितरत की इशाअत और अपने कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3। इन द 5th 5वीं एंड 6th सेंचुरी, और 6ठी सदी ईस्वी में, मैनकाइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी, ऑन द वर्ज मीन्स दहाने पर, ऑफ क्योस, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज मीन्स दहाने पर, ऑफ क्योस तबाही के। इट सीम्ड, ऐसा दिखाई देता था, दैट द सिविलाइजेशन, के वो तहजीब, विच हैड टेकन, जिसे लगे थे 4000 ईयर्स, 4000 साल, टू ग्रो, परवान चढ़ने में। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को सिनोनिम्स बता देती हूँ अंडरलाइन वर्ड्स के। डेजलिंग मीन्स स्पार्कलिंग, रेज शुमाएं, स्पार्कलिंग रेज। ट्रॉपिकल, वेरी हॉट। रिमार्केबल मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इलोक्वेंट मीन्स expressive people. Dispensation, spreading of message. Preservation, protection. Words means edge. Chaos, destruction. It seemed, ऐसा दिखाई देता था, that the civilization, के तहजीब, which had taken 4000 years to grow, had started क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग मीन्स रेजा रेजा होना शुरू हो गई थी। ऐसा दिखाई देता था कि वो तहजीब जिसे परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, अब रेजा रेजा होना शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड उसी वक्त, अल्लाह आलमाइटी, अल्लाह ताला ने, रेज्ड अ रसूल, एक रसूल, एक नबी माबूस फरमाया, अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत को निकाले, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, और ईमान की रोशनी से मुनव्वर करवाए। एट दिस पॉइंट इन टाइम, अल्लाह आलमाइटी रेज्ड अ रसूल अमंग देमसेल्व्स टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। एंड उसी वक्त अल्लाह ताला ने इन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया, जिसने इंसानियत को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी से मुनव्वर करवाया। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस की उम्र को पहुँचे, तो आप अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर फिक्र में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में, ही यूज टू रिटायर, वो गोशा नशीन हो जाते थे।
with food and water, पानी और खुराक के साथ, and spent days and weeks, और कई दिन और हफ्ते गुजारते, in remembrance of Allah Almighty, अल्लाह ताला की याद में. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty. आप खाना और पानी लेकर गारे हिरा में गोशा नशीन हो जाते और कई दिन और हफ्ते याद इलाही में बसर फरमाते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5. द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का वक्त, हैड कम टू अ क्लोज, एहतताम को पहुंच चुका था. His heart, आपका दिल, was overflowing, लबरेज था, with a profound compassion, गहरी हमदर्दी से, for humanity, इंसानियत के लिए. His heart was overflowing with a profound compassion for humanity. आपका दिल शदीद इंसानी हमदर्दी से लबरेज था. He had a pressing urge, आपकी शदीद ख्वाहिश थी, to eradicate, वो ख़त्म कर दें, रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद, सोशल इवल्स, समाजी बुराइयाँ, क्रूअल्टी, जुल्म सितम, एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ियों को. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि आप गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी को जड़ से उखाड़ दें. The moment had arrived, वो वक्त आ चुका था, when, जब, he was to be bestowed, जब आपको नवाजा जाना था, with नबूवत, नबूवत से. The moment had arrived when he was to be bestowed with नबूवत, वो वक्त आ चुका था जब आपको नबूवत से नवाजा जाना था. One day, एक दिन, when, जब, he was in the cave of Hira, जब आप गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम came and conveyed, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पहुंचाया, to him, आप तक, the following message of Allah Almighty, अल्लाह ताला का पैगाम. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel अलैहिस्सलाम came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. एक दिन जब आप गारे हिरा में थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप तक अल्लाह कादिर मुतलक का पैगाम पहुंचाया. Okay, so students, the synonyms of underlined words are crumbling means break into pieces, solitude means isolation, meditation means thought, overflowing means pour over. Okay class, we will meet again in the next lecture. Allah Hafiz.